तो भैया जून 2020 वाला पेपर है, हमारा वेरिएंट है। ठीक है, इसको पहले अपने पास में डाउन कर लो कहाँ पे कि ये वाला पेपर भी अपना हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे पहले भाई इसकी मार्क्स सॉरी केस स्टडी डेटा रिस्पॉन्स को देखिएगा जरा। The impact of economic concentration by locating closely together, manufacturers can often gain economic benefits. The makers of industrial machines save on transport and communication costs when they are close to the firms that supply their raw material and components. यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात कर रहा है। बोलता है कि जब आप मार्केट के पास होते हो तो आपको कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और आपको अलग फर्दर बेनिफिट्स मिलते हैं। A group of similar manufacturers attract a large number of workers with similar skills. यहाँ पे भी एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्किल की बात हो गई है। सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी, वेज रेट अपने पास कम हो जाएगी। Educational and training facilities in the area will develop courses and research skills that support the local industry. Similar benefits also occur in service finance in New York, Hong Kong, and London, where groups of accountants, merchant bankers, and specialist lawyers in mergers and acquisition all exist in close proximity. बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेम स्किल वाला वर्कर बहुत सारा है। सेम स्किल वाला, एक ही स्किल वाला वर्कर बहुत सारा। The scope for concentration depends on the size of market. The recent trend towards globalization has increased the size of the available market. This has allowed some internet retailing firms to overcome competition from other countries. But the overall impact has been the delivery of a wide range of goods and services at low prices that have benefited consumers everywhere. This such as the globalization has not been a zero-sum game. Zero-sum game क्या होता है? ये तब होता है, ये ओलिगोपोली का पार्ट है जिसके अंदर आपको एक पार्टी बेनिफिट में होती है और दूसरी पार्टी नुकसान में जा रही होती है, लॉस में जा रही होती है। बट कॉन्सेंट्रेशन हैज नॉट ऑलवेज बिन फाइनेंशियल beneficial. Silicon Valley has significant traffic congestion and many people are priced out of the housing market. Traffic congestion, external diseconomies of scale. 7 of the 10 most polluted cities in China are in Hebei province, a center for the iron and steel industry. यहाँ पे यानी कि अपने पास रॉ मटेरियल डेवलप हो रहा है। दिस concentration has caused large amount of air, water and land pollution. The competing demand for a limited number of workers has also led to wage increases. आपके पास वेजेस बढ़ गई हैं यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। फर्दर ये जो क्वेश्चन है मार्केट फेलियर के साथ लिंक हो रहा है। Geographical concentration of an industry can lead to problems when demand for a product changes. This has been evident in the United States, where the city of Detroit has experienced unemployment rate as high as 25% and fall in its population by over 60%. बोलता है कि आबादी भी 60% से कम हो गई है और आबादी गिरने के बावजूद हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 25% से बढ़ रहा है। Because of the decline in Detroit's motor industry caused by vehicle imports and the movement of production to United States, where trade unions are not as strong. यहाँ पे भाई अपनी यूनियन इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये अपने पास यूएस का कर्व गिवन है और ये अपने पास पूरी की पूरी डिट्रॉइट का गिवन है कि अपने पास अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह किस हिसाब से हुई। अब यहाँ पे एक चीज को आप गौर से देखो, 2011 में पूरे यूएस में 10% थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट और सिर्फ डिट्रॉइट के अंदर 30% यानी कि 27% थी करीब। इसी तरीके से बाकी भी मुल्क टाइम पीरियड में चलता जा रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिट्रॉइट की जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ओवरऑल यूएस से ज्यादा है। ठीक है, ओवरऑल यूएस से अपने पास ज्यादा है। तो अपने पास यहाँ पे भाई क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जीरो सम थ्योरी। तो जीरो सम थ्योरी मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि जी हमारे पास एक पार्टी बेनिफिट में जा रही होती है, एक पार्टी अपने पास लॉस में जा रही होती है। यूज द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन हाउ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप। शो विद द एड ऑफ डायग्राम हाउ दिस वुड अफेक्ट फर्म्स एवरेज कॉस्ट। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को सबसे पहले तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती क्या है। ठीक है, फिर आप ये वाले डायग्राम बनाओगे जहां पे आपके पास ये दो शिफ्ट आ रहे हो तो वो आप उसको ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट करके दिखाओगे LRAC और ये LRAC1। अब आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट करके दिखा दिया। अब जब वो आपसे पूछता है कि भाई ये बताओ कि एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल होती कैसे है और हमें किस तरीके से कॉस्ट पे अफेक्ट आएगा, आपने वापस से केस की तरफ आना है। और केस के अंदर कौन कौन सी बातें लिखी हुई थी एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल वाली, एक तो ये लिखी हुई है आपके पास सप्लाई वर्कर बढ़ेगी। ठीक है, ये लिखी हुई है ट्रेनिंग फैसिलिटीज आपके पास आ गई हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई है, कम्युनिकेशन कॉस्ट बच गई है। तो आप इससे बताएंगे कि जी ओवरऑल तो आपकी कॉस्ट कम ही हो रही है एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम होती है। अगला
There is a fall in demand for the product for a geographically concentrated industry. Analyze the economic implications of this for the area where the industry is located. बोलता है कि यार आपके पास जो जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री है वहां पे हमारे पास किस तरीके से अफेक्ट हो रहा होगा डिमांड के ऊपर, कि डिमांड में क्यों चेंजेस आ रहे हैं। देखो, चल मेरा राइट ही चाहिए। अच्छा भाई यहाँ पे पार्ट सी बोलते देयर इज अ फॉल इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड एरिया। concentrated industry, analyze the economic implication for this for the area where the industry is located। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ बातें लिखी हुई है। यहाँ पे इधर देखो, एक तो हमारे पास यहाँ पे देखो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो जाहिर है इसकी वजह से हमारे पास डिमांड में चेंजेस आती हैं, ऊपर नीचे हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास और भी बातें लिखी हुई थी, एक सेकंड जरा, इधर देखो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपके पास वेज इंक्रीज के बारे में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यार वेज क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो आपके पास डिमांड बढ़ भी सकती है, सिर्फ गिरने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सी है ना। अच्छा, और यहाँ पे क्या बातें लिखी है भाई, हमारे पास यहाँ पे फर्दर लिखा हुआ है कि अ, अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक और बात लिखी हुई है ट्रेड यूनियन के बारे में, कि ट्रेड यूनियन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग। तो जब ट्रेड यूनियन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसकी फिर हमारे पास बार्गेनिंग पावर नहीं हो पाएगा। जब उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं हो पाएगी तो वेजेस लोगों के पास नहीं होंगे और लोग स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके पास क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास डाउनवर्ड मल्टीप्लायर आना स्टार्ट हो जाएगा। जो मैंने आप लोगों को मल्टीप्लायर इफेक्ट बताया है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, वो ऑपोजिट में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास और भी बातें लिखी हैं भाई, आपके पास पॉपुलेशन में चेंजेस आ रही हैं, तो आप पॉपुलेशन की बात करोगे क्या, उस हिसाब से भी हमारे पास डिमांड में चेंजेस आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा हुआ है, 60% हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई है। सही है, सॉरी, पॉपुलेशन 60% से गिरी है। जब पॉपुलेशन 60% से गिरेगी तो लॉजिकल सी बात है डिमांड भी गिरना स्टार्ट हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है कंसिडर हाउ द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज फ्रॉम कंसंट्रेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस। बोलते हैं कि जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है सारी, तो ये रही, इनको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये वही वाली पूरी कहानी है कि आप यहाँ पे जी डायरेक्ट टैक्सेस लगा दें, आप सब्सिडीज देना छोड़ दें, आप फाइन्स पेनल्टीज वगैरह लगा दो, आप एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट कर दो। लेकिन 6 मार्क का है तो फजूल किताब मत लिखने बैठ जाना, तरीके से लिखना है आंसर को, और जितना मार्क्स है उसी हिसाब से आपने कंटेंट लिखना है। समझ गए केस स्टडी पूरी, सेक्शन बी के ऊपर। अच्छा, ये वही है 12-13 मार्क वाला। तो अब मैं जो हूँ पहले आप लोगों को 25-25 मार्क वाले करवा रहा हूँ, क्योंकि वो 20 से रिलेटेड है, बाकी जो है फिर देख लो। बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जरूरत है बताने की, याद होना चाहिए अब ये वाला क्वेश्चन। आप लोग को इतनी बार ये वाला क्वेश्चन कराया, अगर कैंपेन्स की बात करें और बस नच बताकर छोड़ते हैं तो 6 मार्क मिल जाएंगे। 6 मार्क के ना 2-3 मेथड आपको लिखने पड़ेंगे भाई। अच्छा भाई, एफिशिएंसी के बारे में पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना आंसर किससे स्टार्ट करना होगा, एफिशिएंसी क्या होती है, प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी के बारे में आप बात करेंगे। उसके बाद आप मार्केट फेलियर के ऊपर जाएंगे, फिर आप मार्केट फेलियर में मेरिट डीमेरिट के बारे में बात करेंगे। पब्लिक प्राइवेट गुड के बारे में बता देना, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मत बताना। उसके बाद आप पॉलिसीज के बारे में आओगे, जहाँ पे वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात कर रहा है, पॉलिसीज टू सॉल्व एफिशिएंसी, उसकी बात आप करेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के हिसाब से आप बात करेंगे। वही मैरिट डीमेरिट की पूरी कहानी इन दी एंड नच थ्योरी जो आपके जीत जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोलता है इन जनवरी 2018 टैक्स रिडक्शन, यानी कि ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा है। टैक्स रिडक्शन was introduced in the US and the Federal Reserve Bank, the US Central Bank, announced it would raise interest rate later in the year। बोलता है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा आगे जाके। अब इसने देखो दो काम किए, पहला कि इसने टैक्सेस कम कर दिए,
दूसरा इसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, यानी कि ये दोनों टाइम पे कौन सी पॉलिसी की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की। बस फर्क क्या है कि ऊपर फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है, नीचे मॉनेटरी पॉलिसी की बात। डिस्कस हाउ दीज पॉलिसीज में कॉज कॉन्फ्लिक्ट फॉर गवर्नमेंट इन ट्राइंग टू अचीव इट्स मैक्रो इकोनॉमिक एम्स। सबसे पहले तो आप एग्जामिनर को बताओगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है। सबसे पहले आप एग्जामिनर को बताएंगे कि आपके मैक्रो एम्स कौन से हैं। आप बताओगे जी गवर्नमेंट के कुछ 4 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके अलावा और भी बहुत से गवर्नमेंट के एम्स होते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम करना और जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेके आना। तो ये तो खैर बेसिक वही कहानी है जिसको आप लोग जो है अक्सर अपने आंसर में लेके चलोगे, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला कि यार हम लोग जो है ना टैक्स रिडक्शन कर रहे हैं, सॉरी ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी पहली वाली, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, टैक्स रिडक्शन है। और ये दूसरी वाली कौन सी है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने मैक्रो इकोनॉमिक गेम्स के बारे में गवर्नमेंट के बता दिया कि भाई ये एम्स होते हैं, इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो आपने अपने क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ा। सबसे पहले वो किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंदर उस बंदे ने क्या किया है भाई, टैक्स कम कर दिए। तो आपने वही चेंज जो आपको मैंने A2 वाली बताई है, एमपीटी कम हो रहा है, एमपीसी बढ़ रहा है, एमपीएस बढ़ रहा है, और आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, और आपके पास एई बढ़ रहा है, शिफ्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे पूरा आपने वो वाला केस शो करना है और उसके साथ आपने लिंक करना होगा, ठीक है। वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक तो हो गई ये वाली बात। फिर आप जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, जहां पे वो कौन सी पॉलिसी लगा रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी वाली। उसने बोला कि आप जी मनी सप्लाई को कम करेंगे, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। किन किन चीजों पे इफेक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, कंजम्पशन आपके पास कम होगी, और सेविंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सेविंग बढ़ रही। ये चीजें आपने यहाँ पे उसको पूरा एक्सप्लेन किया। अब ये तो हो गई इनके बारे में कि भाई ये काम हो क्या रहा है। फिर आप जाएंगे इनके ड्रॉबैक्स की तरफ। ड्रॉबैक्स क्या क्या है जो मैंने आपको नोट्स में लिख के दिए हुए, एक तो क्राउडिंग आउट हो गया, और एक डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी वाला ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वाला यहाँ पे ड्रॉबैक आ गया। यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी ट्रैप आ गया, और जो आपको बताया हुआ रिलीजियस बिलीव्स आ जाते हैं, टाइम पीरियड आ जाता है, टाइम लैग आ जाता है, ये चीजें आपने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब उससे आपने उसने आपसे सॉरी कंक्लूजन में क्या पूछा है, कंक्लूजन में पूछा है कि यार एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे यहाँ पे। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे LRAS की डायग्राम भी एक बनाता, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, वो वाली जो यूं बन रही होती है, ठीक है। कंक्लूजन, यस। अब एक्सप्लेन करो कैसे। देखो, जब मैं यहाँ पे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बना रहा हूँ, यानी कि मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मेरे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लेकिन साथ ही साथ प्राइस पे भी क्या इफेक्ट आएगा, तो प्राइस स्टेबिलिटी तो अचीव ना होगी, ठीक है। यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे जब मनी सप्लाई को कम कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एग्रीगेट डिमांड कम होगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मेरी प्राइस कम हो जाएगी, सही है, मैं बिल्कुल मानता हूँ मेरी प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ मेरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया वापस से। फर्दर इसको लिंक करो, यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा होगा, अचीव हो गया ऑब्जेक्टिव। लेकिन एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा होता है, तो क्या लोग एक्सपोर्ट करेंगे आपसे, आप सामान परचेज करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगी, और आपकी इम्पोर्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी की तो ऐसी तैसी हो गई, वापस से कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यहाँ पे आओ, जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, तो आपकी प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, बिल्कुल मानता हूँ आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक तो गिर रही है, सॉरी बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आएगा भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ गिरना स्टार्ट हो जाएगी ना। तो आप ये बात बोलेंगे कि आपके पास हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव चल रहा होगा अगर आप डिमांड को हिलाओ, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को हिलाते हो। हाउएवर, अगर आप यही पॉलिसी सप्लाई साइड से लेके आते, तो वहां पे बहुत कम चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सप्लाई साइड की बस एक लाइन लिखनी, पूरा उसको एक्सप्लेन मत करना क्योंकि उसके बारे में पूछा हुआ है। हाँ, तो डिफ्लेशनरी गैप यहीं पे आ जाएगा ना, क्योंकि जब आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाते हो तो वो किस पे लगाते हो, डिफ्लेशनरी गैप के ऊपर, और जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है वो किस पे लगा रहे हो आप,
ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ना पूरा, ये तो आपने लिंक करना ही है क्वेश्चन के। समझ गए बात को? ले लो सर। क्या भाई, क्या पूछ रहे हो? चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है पार्ट बी डिस्कस यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वेदर द डिमांड फॉर अ गुड ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। तो मैंने आपको पहले, क्योंकि ये पुराना पेपर पैटर्न है, तो मैंने आपको बताया था कि 13 मार्क के क्वेश्चन में हमेशा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, पार्ट ए क्या बोलता है? यूज द डिफरेंस कर्व एनालिसिस टू एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड। सही है। बोलता है कि डिफरेंस कर्व एनालिसिस हमें शो करो और बताओ कि यार हमारे पास नॉर्मल गुड के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए जरा। अच्छा, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 2। देखो सबसे पहले तो आपने बेसिक इंट्रो देना है कि रैशनल कंज्यूमर क्या होता है। रैशनल कंज्यूमर के बारे में आपने उसको डिफाइन कर दिया कि रैशनल कंज्यूमर इज द वन हु एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है। रैशनल कंज्यूमर के बाद आप गए इक्विलिब्रियम के ऊपर। कौन सा इक्विलिब्रियम? जहां पे आईसी और बीएल बजट लाइन ये दोनों बराबर होती हैं, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रही होती है, और आपको इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब वो बोलता है कि यार एक बात बताओ कि अगर आपके पास डेरिवेशन में मांगू तो नॉर्मल गुड की आप कैसे डेरिवेशन करोगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि 12 मार्क वाले क्वेश्चन में हमेशा पीसीसी आता है, प्राइस कंजम्पशन करवाता है, अनलेस के वो बोल दे कि इनकम के हिसाब से शो करो। तो यहाँ पर जिस नॉर्मल गुड की बात हो रही है ना, वो नॉर्मल डिमांड कर्व की बात है। ठीक है। आप यहाँ पे एक सिंपल सा पीसीसी ड्रॉ करेंगे और प्राइस कम करके दिखा दो भले, और एक नॉर्मल गुड का डेरिवेशन करके उसकी पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख दो। हाँ, अगर यही 12 मार्क वाले के अंदर वो बोलता कि आप जो है वो इनकम के साथ लिंक शो करो, तो आपको फिर आईसीसी बनाना पड़ता, आपको शिफ्ट शो करें। ठीक है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। पार्ट बी। पार्ट बी कहता है इंडिफरेंस ऑफ एनालिसिस बताओ कि डिमांड जब भी हमारे पास प्राइस कम होती है क्या हमेशा डिमांड बढ़ेगी? ये चीज पूछ रहा है ना वो आपसे। तो अब यहाँ पे आओ। यहाँ पे आपने शो करना है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसके अंदर आप नॉर्मल, इंफीरियर और गिवन तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तीनों के बारे में आप बात करोगे, तीनों के बारे में बात करोगे आप, और तीनों के बारे में आप ये बताएंगे कि जी आपके पास किस तरह शिफ्ट आ रहा है, किस तरह डायग्राम बन रही है। हाँ, इंट्रो देना है भाई। इंट्रो आपको देना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में क्या आएगा। क्लास में आपकी अकाउंट सर को, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा लास्ट में। समझ गए हैं बात को? हाँ, अगर 20 मार्क का है तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है, उसकी भी लिंक बैठती है। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आए। 3B बोलता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एंड कंसीडर इट्स इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। और पार्ट ए बोलता है एक्सप्लेन हाउ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ परफेक्टली कंपैटिटिव फर्म अफेक्ट्स इट्स सर्वाइवल इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। देखो A2 इकोनॉमिक्स के आंसर अगर आपको याद हो गए तो आपको ए कहीं नहीं, डायग्राम्स याद हो गई, एक ही नहीं था, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, सारी बातें आप लोगों को आती हैं। अब यहाँ पे देखो उसने आपसे पूछा कि परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताएं कि अगर मेरे पास, और अच्छा डायग्राम के अंदर बताना है विद कॉस्टर्स कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से क्या अफेक्ट आएगा मेरे सर्वाइवल पे, किस तरीके से वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो, आपने पहले से परफेक्ट कंपटीशन का इंट्रो दिया, परफेक्ट कंपटीशन का आपने पूरे का पूरा इंट्रो दे दिया, थाउजेंड ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग सेम गुड सेम क्वालिटी होमोजेनियस वगैरह ये सारी बकवास बातें आपने उसको बता दी। आपने शॉर्ट रन केसेस बताए, आपने लॉन्ग रन केसेस बताए, बस खत्म। क्या मुश्किल है इसके अंदर? बस फर्क ये है कि इसके अंदर आप फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों शो करोगे, याद करो। सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, सब नॉर्मल, लास्ट ऑपरेटिंग।
तो लास्ट ऑपरेटिंग और सब नॉर्मल तो वेरिएबल कॉस्ट के लिंक होके आते हैं। और यहाँ पे सिर्फ कौन कौन से आएंगे, एब नॉर्मल प्लस नॉर्मल। तो यहाँ पे एटीसी इज इक्वल्स टू एबीसी। थ्री कनेक्टेड नहीं बनाओगे आप, क्योंकि ये 12 मार्क का सवाल, तो थ्री कनेक्टेड आपने नहीं बनाई। ठीक है, हाँ अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही पूरा इस पे बेस करता है तब आप बनाओगे। सही। अच्छा अब पार्ट बी, what is meant by principal agent problem, consider its importance in relation to the objective of work। मुझे तो ये पेपर जब आया ना, सर आपने तो प्रिंसिपल एजेंट पढ़ाया ही नहीं है, ये प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है, हमने तो पहली बार नाम सुना है। भाई यार वो लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोगों को नहीं पता प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है यार। प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जब किसी सब ऑर्डिनेट की और अपन लेवल मैनेजमेंट की फटा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अब इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, फॉर एग्जांपल मैंने, अच्छा प्रिंसिपल कौन बंदा होता है, प्रिंसिपल वो बंदा होता है जिसके लिए डिसीजंस लिए जा रहे हो। सही है, और एजेंट कौन होता है, जो बंदा डिसीजन ले रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर और डायरेक्टर, शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करता है ना टू रन द बिजनेस। अब डायरेक्टर किसके लिए डिसीजन ले रहा है, अपनी बीवी के लिए तो नहीं ले रहा, शेयर होल्डर के लिए ले रहा है ना, कि भाई शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। तो एजेंट कौन हुआ, डायरेक्टर, और प्रिंसिपल कौन हुआ, शेयर होल्डर। अब इनका कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है, इनका फड्डा कैसे आता है, अब यहाँ पे देखो भाई, एजेंट ने बोला यानी कि डायरेक्टर ने बोला, सॉरी प्रिंसिपल ने बोला शेयर होल्डर ने कि भाई मेरा डिविडेंड बढ़ाओ। सही है, शेयर होल्डर ने बोला कि जी मेरा डिविडेंड बढ़ा दें। डायरेक्टर ने बोला नॉट पॉसिबल, हमें बिजनेस को ग्रो करना है, हमें पैसा इन्वेस्ट करना है बिजनेस के अंदर, हम आपका डिविडेंड नहीं बना सकते। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ठीक है, डायरेक्टर और मैनेजर में कौन प्रिंसिपल हुआ, डायरेक्टर, और मैनेजर कौन हुआ, एजेंट। डायरेक्टर ने मैनेजर को बोला, जो अकाउंट संभालता है उसको बोला, जी मैं तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ अपनी। सही है, प्रिंसिपल ने बोला मैं तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ, एजेंट ने बोला सर आप नहीं बढ़ा सकते, हमारे पास खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो एजेंट ने मना कर दिया। इसको कॉन्फ्लिक्ट को बोला जाता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ टारगेट्स आपके मीट नहीं हो रहे, या आपकी बातें जो है वो सही तरीके से समझी नहीं जा रही, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आओ, हमारे पास जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म की बात कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं आपके फर्म के। अब देखो, पहले तो आपने डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, अच्छा अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, सॉरी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, देखो सिर्फ एक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होता है, प्रॉफिट मैक्स से सेल्स मैक्स, सेल्स मैक्स और ये सारा। तो कोई से भी दो की बात कर लो, प्रॉफिट मैक्स की बात कर लो, प्रॉफिट मैक्स वर्सेस सर्वाइवल ये कर लो, चलो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है, वहां पे कौन सा प्रॉफिट हो रहा होता है, नॉर्मल। ठीक है, अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो एमसी इक्वल्स टू एमआर वर्सेस एमसी इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कंक्लूजन बता दो, क्वेश्चन क्या था भाई, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वजह ये होती है। अच्छा कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऐसा इवैल्यूएशन बैठती नहीं, कंक्लूजन बैठता नहीं, तो आपको अपना एक एंडिंग स्टेटमेंट देनी होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे ये तो नहीं पूछा ना कि भाई कौन सा प्रिंसिपल एजेंट ज्यादा खतरनाक है, उसने तो ये बोला ना कि ऑब्जेक्टिव पे किस तरह अफेक्ट करेगा। तो आप उसको बोलो कि यार देखो ओवरऑल हमारे पास प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होते हैं बिजनेस के अंदर, और दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दोनों को रोल प्ले करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि हमारे पास कम्युनिकेशन गैप्स इतने ना हो, जिसकी वजह से अगर फर्दर गैप्स हुए तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर आ सकते हैं, और हमारे पास प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। समझ में आ गई ये बात, तो आपने कर सकते हो बिल्कुल, स्पैन ऑफ कंट्रोल चेन ऑफ कमांड का जिक्र कर दो। ठीक है, अच्छा 4 हो गया, 5 हो गया, ये चार हमारे हो गए, 6 और 7। अच्छा जी, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, यार ये तो इतना डिटेल में आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, और ये ओ लेवल्स का चैप्टर है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए। डेवलप्ड क्या होता है, डेवलपिंग क्या होता है, इसके अंदर आप एजुकेशन के बारे में लिखोगे, आप पॉवर्टी रेट्स के बारे में लिखोगे, आप हाँ क्या कह रहे हैं, लिटरेसी रेट के बारे में लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आपकी जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, जो वर्क है, काम है, वो किस तरह डिवाइड हुआ है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, पूरा आपने वो चीज दिखा देनी है इसके। ठीक है, डिस्कस वेदर जीडीपी इज द बेस्ट मेजर ऑफ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो जीडीपी को सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है,
आपने रियल जीडीपी के बारे में बताना है, आपने नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताना है, आपने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये बताने हैं। उसके बाद आप जंप करेंगे एचडीआई के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर, आप जाएंगे एमईडब्ल्यू के ऊपर, नोट्स के अंदर पॉवर्टी रेट इंडेक्स के बारे में भी लिखा हुआ है। ये चार बातें आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत सही है, तो आप आराम से इसको एक्सप्लेन करके। अच्छा, फिर उसने बोला कि यार जीडीपी इज द बेस्ट मेथड, मैं बोलूंगा नो, क्योंकि जीडीपी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर है, यहाँ पे वैल्यूज आ रही होती है, यहाँ पे क्वालिटी नहीं आ रही। यहाँ पे ये नहीं बता रहा होता कि यार आपको पीने का साफ पानी मिला या नहीं मिला, या आपकी एजुकेशन क्या है, आपका लेजर कितना आ रहा है, ये चीजें यहाँ पर नहीं है। तो मेरे हिसाब से कि नहीं, जीडीपी इज नॉट द बेस्ट मेथड। तो आप उसके लिए कोई डिसएडवांटेज निकाल के रखेंगे और डिसएडवांटेज आप अपने कंक्लूजन में ऐड अप करेंगे और समझा देंगे कि भाईजान ये देखिए, समझ में आ गई ये बात। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन केन्जियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। याद करो, जब मैंने मनी मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी इन्फ्लेशन स्टार्ट किया था और मैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस बता रहा था, तो मैंने ये बात बड़े क्लियर लफ्जों में कही थी कि इसके ऊपर पूरे पूरे 12-12 मार्क का सवाल बना है, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन स्पेकुलेशन के ऊपर। ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन स्पेकुलेशन, वो बटन दबा देना, वो पावर का बटन होगा वो दबा दो। ब्लू लाइट तो जल गई, खैर वो आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे काम करो, ये अपने पास ही पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा बोल, मैंने आपको ये बात बड़े क्लियर लफ्जों में कही थी कि जब भी मैं मॉनेटरी पॉलिसी करवा रहा हूँ उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी प्रेफरेंस का, तो ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन स्पेकुलेशन पे पूरे का पूरा 12-12 मार्क का सवाल आ चुका है, ये मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, आपने केन्जियन के बारे में बताना है, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट क्या है ये चीज भी आप लोगों को पता है, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता है कि भाई हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन स्पेकुलेशन क्या होती है, आप लोगों के पास इसकी डायग्राम भी है, डायग्राम भी आपने एक्सप्लेन करनी है, पूरे का पूरा आपका आंसर यहाँ पे एंड। एक मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो, डायग्राम से जो आंसर स्टार्ट कर रहे हो भाई, ये गंद नहीं करो, ये नहीं होती चीज, सही है। पार्ट बी बोलता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग बाय अ सेंट्रल बैंक। पहले तो आपने सेंट्रल बैंक डिफाइन करना है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो तमाम बैंकों का बाप होता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल दे देना, भले एग्जांपल कोई मसला नहीं। अच्छा, क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हाउ कैन अ गवर्नमेंट इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? बाय बाय करके, सेल करके, बाय बाइंग बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स को बाय करेगा जिसकी वजह से कंज्यूमर के पास पैसा आएगा, मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ेगी। पूरा एक्सप्लेन करो उसको, उसको एई के साथ लिंक करो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के साथ लिंक करो, ठीक है। और उसको बताओ कि जी हमारे पास देखो मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन आपने उसको फिर ड्रॉबैक में भी लेके जाना है। हाउएवर दिस कैन लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन, किस तरह करेगा बना के दिखाओ उसको। दिस कैन लीड टू लिक्विडिटी ट्रैप, किस तरह करेगा बना के दिखाओ उसको। जितना आप उसके फेवर में बात कर रहे हो, बैलेंस रख के उतना ही अगेंस्ट में आप बात करो, ठीक है, ताकि आपकी जजमेंट में इवैल्यूएशन में आपको प्रॉब्लम ना। तो आप कंक्लूजन में क्या बोलेंगे, ये बात मैंने आपको बताई हुई भी है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि टू इंक्रीज मनी सप्लाई इज बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग रन, नॉट इन शॉर्ट रन। वजह क्या है कि देखो, शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास खतरा होता है कि हम लोग चले जाएंगे जी हाइपर इन्फ्लेशन, लेकिन जब मैं लॉन्ग रन की बात करता हूँ तो एक बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट क्या होता है कि मैं इन्वेस्ट, जो इंटरेस्ट मेरा कम हो रहा है मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से, उससे मैं क्या परचेज करूंगा, मशीन ही परचेज करूंगा ना, कैपिटल गुड्स ही परचेज करूंगा ना। तो कैपिटल गुड्स से आपकी औकात भी तो बढ़ेगी आगे जाके। तो आप बोलोगे कि यार मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट बेनिफिशियल इन द लॉन्ग, इन द शॉर्ट रन, इट कंसिस्ट ऑफ टाइम लैग फॉर विच इट इज बेटर इन द लॉन्ग रन। इस तरीके से आपने इसको बताना है, यार क्वांटिटेटिव ईजिंग इज बेटर इन लॉन्ग रन एज कंपेयर टू शॉर्ट रन। लोन्स लेंगे, लोनेबल फंड्स थ्योरी नोट्स में लिखी हुई है, उसका जिक्र करो, सही है। ये वाली पूरी कहानी आपके पास लिखी हुई है, कोई मसला बेटा, समझ गए सारी कहानी?